Good morning, dear students. Welcome to Silver Bells Mansarovar Online Education. Today we are going to discuss chapter number 7 from Beehives. The name of the chapter is Packing. Dear student, this is a really funny and enjoyable story we are going to discuss. Let us start. Jerome, Harris, and George are three friends. The author Jerome is describing his packing skill and feels that he knows more about it rather than anyone else. He suggests his other friends to leave the packing that they are doing for their trip entirely to him. George and Harris happily agree to it and make themselves comfortable in their room. But Jerome didn't intend this. He actually wanted to boss them and instruct them to pack the baggage according to him. But as himself had offered to help, he started the work and finally finished it in some time. Actually, writer Jerome he wanted to supervise the work of the packing, and that work should be done by Harris and George of his friend. But instead of that, the scene has been changed. Writer himself he had to do the work. Okay. Now next, suddenly Harris said that he had forgotten the boots. Jerome felt irritated on that. He opened his bag and put the boots in it. Then, when he was just to zip it again, to zip it, it means to close it. He just thought if he had packed his toothbrush or not. The idea that he has left his toothbrush haunts him every journey. To find his brush, he unpacks and packs it again. They all created chaos over the things. And finally, Harris and George decided to do the rest of the packing. Okay, afterwards, a writer himself tired. So remaining packing is still left. So which was done by his friend Harris and George. Now see what happened. While they were packing, Jerome watched them and thought that Harris was the worst packer in the world. They were they all were very excited. While packing, Harris and George first broke up a cup. Okay, when Harris and George started packing at that time, okay, first they broke the cup. Then Harris packed the strawberry jam on top of the tomato and squashed it. Then George put a mess with the butter and the whole place was so sticky. Above all this, Montmorency, there is a dog. The dog was in it all. It seems to be his ambition of life to get into the way of others. He loved to make people and made and create nuisance all over. The nature of the dog was just like that. Okay, what he did, he made people mad and create nuisance all over. He came and sat on the things when they were just about to be packed. Finally, after so much chaos, irritation, and laughter too, they managed to pack their bags in a hope that they had not forgotten any things. And they will find their things in the best of the condition when they open it and went to sleep. स्टूडेंट्स, अब ये समरी को हम हिंदी में समझ लेते हैं जिससे ज़्यादा ख्याल आ जाए, समझ में आ जाए. हाँ, यहाँ जो स्टोरी के जो राइटर है जेरोम, वो और उनके दूसरे दो फ्रेंड जॉर्ज एंड हैरिस, वो एक एडवेंचरस ट्रिप पे
जा रहे हैं और उसकी पैकिंग कर रहे हैं। अब ऑथर जो है वो खुद ऐसे मानते कि मैं सब काम में अच्छा हूँ, फिर भी एक काम जो है, जो पैकिंग, उसमें मैं सबसे अच्छा हूँ, क्योंकि मेरे जैसी पैकिंग कोई कर सकता नहीं है। इसीलिए अपने दो जो फ्रेंड्स हैं उनको बोला कि आप जो पैकिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझ पे छोड़ दो, मैं बहुत अच्छी जानकारी रखता हूँ पैकिंग के बारे में, मेरे पास बहुत अच्छी स्किल है। अब ये बोलने के बाद उनके जो दो फ्रेंड थे जॉर्ज एंड हैरिस, तो उन्होंने मना नहीं किया। वो मतलब कि अलग जगह पे बैठ गए, वो ऑब्जर्व करने लगे। अब क्या हुआ, राइटर को क्या लगता था कि वो सुपरवाइज करेंगे, वो देखेंगे कि हैरिस और जॉर्ज कैसे काम करते हैं, पर एक्चुअली पूरी जो है घटना चेंज हो गई और राइटर खुद को ही, ऑथर खुद को ही वो पैकिंग करनी पड़ी। तो वो चीज़ उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो एक स्टोरी भी मतलब इसमें याद करते हैं कि आगे एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि उनके कोई साथ दूसरा कोई फ्रेंड था, तो वो मतलब कि जब राइटर काम करते होते थे तो बैठा रहता था और कुछ काम नहीं करता था, वो देखता रहता था, तो वो राइटर को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। अब यहाँ हुआ वो वापस अपनी जो पैकिंग में लग जाते हैं, उनको चीज़ अच्छी नहीं लगी, हैरिस और जॉर्ज कुछ काम नहीं कर रहे, पर वो सिर्फ उनको देख रहे हैं। अब ये चीज़ होने के बाद राइटर ने पैकिंग स्टार्ट कर दी। उन्होंने सारी चीज़ें मतलब बैग में रखने का स्टार्ट किया। अब जब वो चीज़ें रख रहे थे, अब सारी पैकिंग ख़त्म करने के बाद हैरिस बोला कि ये शूज़ तो बाहर रह गए, वो रखने थे वो। तो राइटर को बहुत गुस्सा आया कि वो पहले बैठा ही था तो बोला नहीं जब पैक कर रहा था तब। फिर उन्होंने बैग को अनपैक किया, खुला और उसमें शूज़ रख दिए, वो बंद की। फिर अचानक उनको याद आया मेरा टूथब्रश रह गया या रखा है, वो उनको याद नहीं आ रहा था। तो फिर से उन्होंने बैग खोली और बैग खोली तब ढूंढ रहे थे तो हैरिस और जॉर्ज के टूथब्रश मिल रहे थे, पर उनका हाथ में नहीं आ रहा था। और हर बार राइटर को ये टेंशन रहता था कि मैं जब भी बाहर जाऊँ तब मेरा टूथब्रश जो है वो रह ना जाए। तो उन्होंने ऐसे वैसे करके फिर उनको मिला और रखा। फिर उन्होंने जो है बैग बंद की। जैसे फिर बैग बंद की, उनको अचानक याद आया कि मेरे स्पेक्स तो रह गए, अंदर रख दिए मैंने, जो मुझे बाहर जाऊंगा तब ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर से उन्होंने बैग अनपैक किया और स्पेक्स बाहर निकाले और फिर वापस बैग उन्होंने बंद किया। तो ये सारे जो काम काज में उनको बहुत गुस्सा आया, इरिटेशन भी हुआ। अब फिर से उसके फ्रेंड ने बोला कि ऐसे कुछ भी करके उन्होंने 10 बज गए थे, 10 और 5 बजे उनकी जो है पैकिंग वो ख़त्म हुई। अब फ्रेंड ने बोला कि शॉप तो बाहर रह गया उनको रखना। तब राइटर ने बोला अब चलेगा, अब मैं फिर से बैग ओपन नहीं करूँगा, फिर देखेंगे, बिना शॉप के नहा लेंगे। ओके, और उन्होंने मतलब कि रख दिया। फिर भी पैकिंग में सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई थी, अभी खाने पीने की चीज़ें तो बाकी थी पैक करने की। तब राइटर खुद थक गए थे। फिर जॉर्ज और हैरिस ने बोले कि चलो एक काम करते हैं, अब बाकी का जो रिमेनिंग जो पैकिंग है खाने पीने की सारी चीज़ें वो हम पैक कर देते हैं। तब दोनों फ्रेंड्स मतलब कि खड़े हुए पैकिंग करने के लिए और उन्होंने ऐसा दिखावा किया कि दो बहुत अच्छा पैकिंग कर रहे हैं, राइटर से भी बहुत अच्छा पैकिंग वो कर लेंगे। पर राइटर खुद मानते थे हैरिस दुनिया का सबसे खराब पैकर है, वो कोई चीज़ ढंग से रख ही नहीं सकता। पर राइटर ने क्या किया, वो भी साइलेंट होके कोने में बैठ गए और सारी चीज़ें देखने लगे। अब हैरिस ने क्या किया, स्ट्रॉबेरी जैम था उसकी जार टोमेटो पे रख दी, तो सारे टोमेटो थे वो स्मैश हो गए, सारे पिचक गए। अब उसके बाद जॉर्ज ने मतलब ऐसे वैसे करके उसको मतलब कि बाहर निकाला। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो जब बटर पैक कर रहे थे तब बटर पे
जॉर्ज ने पैर रख दिया और पूरा एरिया वहाँ का नीचे का फ्लोर का स्टिकी बना दिया। तो ये सबसे खराब बाबत हुई। फिर नमक गिरा दिया, तो पूरा मिसमैनेजमेंट यहाँ पैकिंग में देखने को मिला। फिर से वो जो बटर है उसकी हालत तो बहुत ख़राब कर दी थी। उन्होंने बटर को फिर से केटल में डालने का ट्राई किया पर वो नहीं जा रहा था। फिर बटर को जो जॉर्ज ने चेयर पे रख दिया। अब वो जो बटर चेयर पे पड़ा था, थोड़ी देर के बाद हैरिस आके ऊपर बैठ गया। फिर से ये लोग ढूंढने लगे बटर कहाँ गया, बटर कहाँ गया, पर उनको नहीं मिल रहा था। दोनों में मशक्कत हो रही थी कि बटर कहाँ रखा है। उसने बोला मैंने तो चेयर पे रखा था। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर थोड़े टाइम के बाद पता चला कि जो बटर है वो हैरिस के पैंट पे लग गई है। तो ये सारी जो है मिसमैनेजमेंट यहाँ देखने को मिला। फिर स्टोरी में एक नया कैरेक्टर आता है, मॉनमोरेंसी, एक डॉग है। तो वो डॉग का एम ही है कि दूसरों की लाइफ में इंटरफियर करना, और जब तक उनको मतलब का मार के भगाया ना जाए तब तक उसकी लाइफ का एम पूरा नहीं होता। तो वो क्या करता था, मतलब कि इधर उधर घूमता रहता था। जो पैकिंग करने वाली चीज़ें हैं उसको ही मतलब ले लेता था, उसको ही टच करता था, और जो वहाँ लेमन गिरे थे तो उसके पीछे भागता था और जैसे उसको चूहा पकड़ना ऐसे। फिर ये दोनों को ये डॉग ने बहुत परेशान कर दिया। फिर जॉर्ज ने पेन जो फ्राई करने का आता है वो लेके उसको मारा, भगाया वहाँ से। फिर से वो काम वो करने लगे। देन ऐसे वैसे करके 12-15 को उन्होंने पैकिंग ख़त्म की, और उनको टेंशन था कि कोई चीज़ रह ना गई वो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ हुई। फिर उन्होंने सोचा कि अब सुबह में जल्दी उठना है। तो जॉर्ज ने बोला कितने बजे आपको उठाऊं। अब उसमें भी थोड़ा कंट्रोवर्सी रही। हैरिस बोल रहा है 7 बजे उठना है, राइटर बोल रहे हैं कि 6 बजे उठना है, उनको कुछ लेटर्स लिखने हैं। फिर दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ करके 6:30 का टाइम फिक्स किया। तो ये जब बातें चल रही थी तब देखा तो बाजू में मतलब कि दूसरी जगह पे जॉर्ज सो गया था। अब ये तीनों फ्रेंड्स मतलब कि बहुत शरारती थे। तो जहाँ जॉर्ज सोया था वहाँ ये लोगों ने पानी का एक बकेट भर के पानी उसके बाजू में रख दिया। तो जैसे ही जॉर्ज मतलब कि उठेगा या पलटेगा तब मतलब कि वो पानी उस पर गिर जाएगा या बिक जाएगा वो। तो ये इंटेंशन के साथ वो सो गए। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि ये बिल्कुल फ़नी स्टोरी है, रीड करने में भी मजा आएगी। तो मैंने समरी समझा दी है। अब उसके बाद हम लेसन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सपोज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, you can call me or you can send message me.